Good morning, students. Under the series of organizational behavior, today the topic is group dynamics. Group dynamics is actually a branch of social psychology which studies problems involving the structure of a group. किसी भी ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है, हाउ अ ग्रुप फॉर्म्स, उनका फंक्शन और प्रोसीजर, या कॉमनली जो आप किसी भी ग्रुप में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर स्टडी करते हैं वो ग्रुप डायनामिक का सब्जेक्ट होता है. वी सी नेवर doubt that a small group of thoughtful citizens can change the world. Indeed, it is the only things that ever has. Because all of us know organization टीम के अंडर काम करता है जहाँ पे ग्रुप के अंडर काम किया जाता है. तो ग्रुप को क्रिएट करना, उसका स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मेशन बेसिकली ग्रुप डायनामिक्स का क्रिएट करता है. देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रुप डायनामिक्स अंडर दिस to identify and analyze the social processes that impact on group development and performance. As I say, how we are creating the trust, how we are making the commitment in a particular organization. हमारी organization के लिए accountability क्या है और उनके results को हम किस तरह से performance और development के through judge करते हैं, ये group dynamics का objective होता है. Secondly, you can say to acquire the skills necessary to intervene and improve individual and group performance in an organizational context. Whenever we study or talk about the organization, the development and progress is the necessary. Because whatever we are doing, that is basically for the future orientation. That is for the future development. तो ग्रुप डायनामिक का ऑब्जेक्टिव भी यही रहता है कि हम किस तरह से इंडिविजुअल को की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, ना सिर्फ इंडिविजुअल फॉर्म में, ऑल्सो ग्रुप फॉर्म में. टू बिल्ड मोर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बाय अप्लाइंग टेक्निक्स दैट प्रोवाइड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन गोल अचीवमेंट. You can say that certain organizations are working for a certain goals, so the goals should be clear. So according to these goals and objectives, the group dynamics are formed and they are structured. The social process by which people interact in a group environment, because the group environment is consist of the external environment, so it is the necessary portion कि social progress जो हो, जो procedure हो, उसमें people इस तरह से interact करें. The influences of personality, power and behavior on the group process. किसी भी personality, power या behavior जो भी psychological elements होते हैं उनमें group dynamic कितना impact प्लेस करता है, ये भी ग्रुप डायनामिक्स के ऑब्जेक्टिव्स के अंडर आता है. वेल, व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप्स और द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स, वी आर डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स, द फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल ग्रुप्स. फॉर्मल ग्रुप दैट इज बेसिकली स्ट्रक्चर्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जिसमें हम ऑफिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स को इंक्लूड कर सकते हैं. Whether on the other hand, informal groups emerge naturally in response to organization or member interests, because informal में किसी तरह के rules, regulations and policies नहीं होती हैं. ये पूरा का पूरा unofficially और informal way में run करता है. इसकी communication, leadership styles भी properly informal होती है. सो डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मल या इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं. Now the group sizes, issues to be considered include opportunities where we have to see to express the individual viewpoints. It is very much necessary कि individual का viewpoint आप study करें. Whenever we have to see the social process by which people interact in a group environment to develop social relationships, the influence of personality, power and behavior on the group process to ensure everyone participations. आपने मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट आपके वर्कर्स को कराना है, उनकी डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसीज़ में उनके व्यूज़ और इनपुट्स आपको लेने हैं. तो ये इंश्योर करना चाहिए कि आपके ग्रुप के हर एक पार्टिसिपेंट्स को इक्वली ट्रीट किया जाए और उनके सजेशंस और उनके पार्टिसिपेशंस को वेलकम किया जाए. एंड फॉर इंडिविजुअल रिकॉग्निशन, एज आई से दैट ट्रस्ट, कमिटमेंट, अकाउंटेबिलिटी इज़ द की सोर्स ऑफ एनी ग्रुप. तो ये इंश्योर किया जाए कि जो भी ग्रुप में व्यक्ति अपना कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है उसे एक रिकॉग्निशन, एक सेल्फ रिकॉग्निशन की फील हो.
Whenever we see the issues that are considered includes, we have to ensure that all skill sets are included. That is very much necessary. The trust and openness is the success key of any organization. We have to examine the impact of a poor performance on group achievement, जहाँ पे ये देखा जाए कि जो भी विलिंगनेस है मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए उसे एग्जामिन किया जाए प्रॉपरली. वी हैव टू एंश्योर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीडर्स एंड फॉलोअर्स वेयर वी हैव टू सी द डाइवर्सिटी एंड द इंक्लूजन, कि हर एक व्यक्ति का जो भी कॉम्बिनेशन है लीडरशिप या फॉलोशिप में, फॉलोवर्स में, वो टोटली ओपन हो, किसी तरह का हिच ना हो. वी हैव टू एग्जामिन द पोटेंशियल्स ऑफ पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर interdependence and sense of belonging. It is very much necessary that the leadership should be participative. आपकी लीडरशिप में पार्टिसिपेटिव हो, जिसमें आप हर एक मेंबर को इंश्योर कर रहे हैं उन्हें टाइम टू टाइम यू आर गिविंग द चांसेस टू ग्रो, टू डेवलप एंड टू शो द अचीवमेंट्स. एंड इट इज ऑल्सो शोइंग द इम्पैक्ट्स ऑफ मेंबर डाइवर्सिटी. देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स. बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज या जितने भी सक्सेसफुल कंपनीज है, इफ़ आई टेक द नेम ऑफ नेशनल कंपनी ग्रुप, नेस्ले कंपनी ग्रुप और एप्पल कॉरपोरेशन, इवन जितनी भी सॉफ्टवेयर ग्रुप्स हैं, जो भी वहाँ पे जो भी डिसीजंस होते हैं, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन ग्रुप डिसीजंस. दैट्स वाई दे आर सक्सेसफुल. Now, how we have to form the groups? The first step is forming, where we have to see the orientation and the guidance. These are the dependents. आपका जो भी रिस्पेक्टफुल डिबेट्स होना ज़रूरी है. एक प्रोडक्टिविटी, आपके पास प्रोडक्टिविटी मैटर्स पे बात होनी चाहिए, इसलिए जो भी ग्रुप डेवलपमेंट हो वो फॉर्म करता है ओरिएंटेशन से. देन सेकेंडली वी कैन से स्ट्रॉमिंग. Storming says conflicts, roles and responsibilities, rules and procedures, individual recognitions, where we are just focusing on the counter dependence. So we have to see, we have to fix the areas to improve. कहाँ पर आपको improve करना है? You have to create a team chart. Then you have to foster a meaningful company culture. Also encourage the communication, and the communication should be open communication. And we have to keep observing the dynamics which are purely related with the team. Now the next step of the group development is the norming. It is actually the issue resolution, develop social agreements, cohesion, establish group norms, where we are saying कि इससे पूरा का पूरा आपकी इंटरडिपेंडेंस होती है, कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला हर एक व्यक्ति इंटरडिपेंडेंट है और वो किस तरह से टाइमली और क्विकली डिसीजंस लेता है एज द प्रॉब्लम्स डेवलप्स. और उसी टाइम पे उस वी हैव टू फाइंड द एरियाज टू इम्प्रूव. नाउ नेक्स्ट इज परफॉर्मिंग, वेयर वी हैव टू सी द म्यूचुअल असिस्टेंस, क्रिएटिविटी, अंडरस्टैंडिंग, गोल्स एंड रोल्स. ऑल दीज थिंग्स आर डिपेंडेंट because we have to share a friendly bond. We have to see survival and security in any particular organization. We have to maximize the achievements of particular organization. There should be a social stability, and we have a sense of power as well as controlling. And last one is adjourning. तो किसी भी ग्रुप डेवलपमेंट के लिए adjourning में आपका जो चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, दे आर क्लोजर, सिम्बॉलिज्म, सेरेमनीज एंड इमोशनल सपोर्ट. तो आप कह सकते हो इन शॉर्ट स्टूडेंट्स कि जितना भी पार्टिसिपेंट्स के इनपुट्स हैं, आइदर इन द एरिया ऑफ टास्क बिहेवियर, वो किस तरह से पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बिहेव कर रहे हैं, हाउ दे आर बिहेविंग पर्टिकुलर मेंटेनेंस, वो किस तरह से एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, या किसी तरह से सेल्फ इंटरेस्ट बिहेवियर्स को काउंट कर रहे हैं. तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज फॉलोइंग द ग्रुप डायनामिक्स. अदरवाइज जो पुअर ग्रुप डायनामिक्स है उसके रिजल्ट में देयर विल बी अ वीक लीडरशिप, कंपटीशन हो जाएगा बिटवीन द ग्रुप मेंबर्स और डेवलपमेंट ऑफ सब ग्रुप्स क्रिएट हो जाएंगे. ऑर्गेनाइजेशन अपने मेन ऑब्जेक्टिव से भटक जाएगा और यू विल से देयर विल बी लैक ऑफ डायरेक्शन. फाइनली, if I conclude my words, I will say that for any successful and healthy organization, there should be a group dynamic which should be nourished time to time, जो आपके टास्क और अपने ऑब्जेक्टिव्स को टाइम से अचीव करे. तो इसके लिए जो बेस्ट की है दैट इज द ग्रुप डायनामिक्स एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड अ हेल्दी लीडरशिप, वेयर वी आर शेयरिंग अ फ्रेंडली बॉन्ड
and where we are providing security and self of belonging to each and every member.